So after studying the mechanism of human genome project and when it was completed, so scientists were able to draw some conclusion from this genome project. And so we see what are various salient features that we have drawn or scientists they have drawn from this project. So first of all, human genome contains near about, first conclusion was human genome contains 3164.7 million nucleotide bases, or we can also call it 3 to 10 raised to the power 9 bases. And we also know what is an haploid content and what is a diploid content, and this number is specifically mentioned in our NCERT, so we should remember this name. So first conclusion was that it contains near about 3164.7 million nucleotide bases, and size of average gene is containing 3000 bases, but there are exceptions. ऐसे एवरेज जीन का साइज लेना तो एक जीन एवरेज जीन में कितने बेसिस माने जाते हैं, एवरेज साइज के बेसिस पे 3000, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. फॉर एग्जांपल ह्यूमन मस्कुलर ड्यूचीन डिस्ट्रॉफी, it is a disease and the gene responsible for this is dystrophin genes. It contains near about 2.4 million bases. इसमें कितने हैं, largest है 2.4 million bases are there in this genes. ठीक है, largest माना जाता है, और smallest अभी हम देखेंगे Y chromosome माना जाता है. तो this is the second point, that second conclusion was कि average size कितना है 3000 bases, but जो largest ह्यूमन मस्कुलर ड्यूचीन डिस्ट्रॉफी उसमें कितने प्रेजेंट होते हैं, 2.4 मिलियन बेसिस आर प्रेजेंट, एंड दिस जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स. किसके ऊपर है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मिला है ये, और इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया हुआ है लेसन 5th में. तो यू कैन सी दैट लेक्चर ऑल्सो, वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़, इसमें इस डिजीज़ के बारे में बहुत डिटेल से दिया गया है कि व्हाट इज़ ए कॉजल, what kind of disease it is, whether it is autosomal or sex linked, or what kind of disease it is. बहुत detailed aspect में I have given this regarding this disease. Now we come to the next point. Now we have learned that there are about the size of average gene is 3000 bases, and this point we know 99.9% of human genes or human genome is similar, and it is a difference that we can say difference is about 0.1% that we are going to differentiate from one another, or we can say Sita is different from Geeta. Different persons I am talking about. Ram is different from Sham. किस तरह से human races में ये differences आते हैं. They are present in different geographical regions. Different races are there, but there is a difference of only 0.1% is there that we have altogether know. Next, less than 2% are functional. 2% are functional, or we can say coding for proteins. Functional or coding for different proteins to give some expressions. Every expression is determined by the formation of proteins that we have studied in this very lesson. Transcription, translation तो पढ़ा ही है. जो भी expressions हैं वो protein formation के द्वारा होंगे, चाहे वो phenotypic है, external है, या whatever expressions our living beings are giving, they are definitely by the formation of proteins. I mean to say only 2% genes are functional. In total जितना भी genomic content है उसमें 2% functional है. और next, there is a less than more than 50% are non-functional, जिनका कुछ भी फंक्शन नहीं है, and their function is unknown. उनका फंक्शन क्या है, unknown है, 50% से ज़्यादा. ठीक है, non-functional नहीं, functions unknown we can say. Functions are unknown, but they are present existing
अभी 50% से ज़्यादा का तो फंक्शन भी पता नहीं चला कि वेदर दे आर फंक्शनल और नॉट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना गया। एवरेज साइज जो होगा ना, टोटल जीनोमिक, टोटल नंबर ऑफ जीन्स, एवरेज टोटल नंबर ऑफ जीन्स, एवरेज जीन्स कितने हैं, अप टू 30,000, 25 से लेकर फ्रॉम 25 टू 30,000 तक माना जाता है कि इतने जीन्स हैं ह्यूमन जीनोम कंटेंट में। बट एंड दिस इज वेरी लेस नंबर एज कंपेयर्ड, जैसे प्रीवियसली माना जाता था 80,000 टू 1,40,000 तक है। तो प्रीवियस नंबर कितना था, एज अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी 80,000 टू 1,40,000, and this number that the scientists they have given from their study, that this number is very less. Now it is said that 25,000 to 30,000 genes are present in human genome project. ठीक है। maximum non coding functional, that we see maximum part is non functional, 2% coding है ना, तो maximum is non coding, and they are in the form of repeated sequence, in the form of repeated sequence that we have already studied. They are having throwing a light on various processes, जैसे कि human physiology में they are playing very important role, and they are playing very important role in studying various kind of diseases, in mapping the genomic content. All these things are due to the known coding reasons, and they are accumulating from generation to generation, accumulating एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चले आ रहे हैं सिंस द प्रिमिटिव टाइम। आई मीन टू से कि बहुत जब से ही जीनोम कंटेंट बना, जीनोमिक कंटेंट की डिस्कवरी हुई, तब से लेकर अब तक दीज नॉन फंक्शनल जीन्स आर प्रेजेंट, एंड दे आर थ्रोइंग ए लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैसा है, उसका डायनेमिक स्टेटस कैसा, इन व्हाट मैनर इट इज चेंजिंग इज शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो थ्रोइंग ए लाइट ऑन इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, जैसे ह्यूमन बीइंग का बिकॉज इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का, इन व्हाट मैनर दे आर हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स, जैसे हम माने जाते हैं कि वी आर वेरी मच क्लोजली रिलेटेड विद द माइस एंड विद चिंपैंजीज, और ऐसा माना जाता है कि बोथ ऑफ these including the human beings they were having the common ancestor। 98.7 से लेकर 98.9% तक और 99 पॉइंट समथिंग परसेंट 1-3% का वेरिएशंस है इन तीनों लिविंग स्पीशीज में हम कह सकते हैं, और कॉमन एंसेस्टर माना जाता है। आई मीन टू से ऑल दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द रिपीटेड सीक्वेंसेस विच आर नॉन फंक्शनल, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिनी सैटेलाइट्स, micro satellites, and responsible for various for helping us in determining the various processes, as we have seen in DNA fingerprinting processes किस तरह से mini satellite work करते हैं in the form of VNTRs और we can say RFLPs। वो सब हमने DNA फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा ही है कि एक तरह से वो जेनेटिक मार्कर हैं और दे आर नॉन फंक्शनल पार्ट एंड दे आर रिपीटेड 100 to 1000 ऑफ टाइम्स। ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल वी हैव ऑल्सो स्टडीड। ठीक है, अब इसमें वेयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई शुड टेल यू दैट स्निप्स क्या होते हैं। नियर अबाउट वी कैन से 1.4 मिलियन लोकेशंस, नियर अबाउट कुछ इतनी लोकेशंस हैं, आई शुड चेक एंड देन आई टेल यू। हाँ, 1.4 मिलियन लोकेशंस पर, नियर अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस पर स्निप्स रहते हैं। स्निप्स भी हम पढ़ चुके हैं, SNMPs, और प्रोनाउंस उनको हम कैसे करते हैं, दीज आर नथिंग बट सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, a part of macrosatellites, and they are responsible for the formation of genetic maps। genetic maps DNA fingerprinting का एक assets हैं, एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके बेसिस पे हम काउंट कर सकते हैं कि ये SNPs के बेसिस पर ही ह्यूमन डिफर करते हैं। पूरा का पूरा DNA ह्यूमन स्पीशीज़ में सेम है, लेकिन नियर अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं जिसमें ये डिफर करते हैं। SNP से 1 नाइट्रोजन बेसिस का डिफरेंस होता है, जिसको हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म।
इतनी लोकेशंस के बाद, और हम कह सकते हैं 300-400 नाइट्रोजन बेसिस के बाद एक नाइट्रोजन बेस डिफर करता है, अदरवाइज ऑल आर सेम। और ऐसा कहा जाता है कि 50% तो वेरिएशन इसके कारण ही है, SNPs के कारण ही है, एंड दे आर इम्पॉर्टेंट टूल फॉर डिटरमाइनिंग द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में सहायक टू स्टडी वेरियस डिजीजेस कि किस तरह से ये वेरिएट करते हैं इन डिफरेंट डिजीजेस में, तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, दिस SNPs, एंड दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन वेरियस अनदर फॉरेंसिक साइंसेस प्रोसेसेस, जैसे कि DNA फिंगरप्रिंटिंग की बात करें, जिसमें हमने ये डिटेल्ड अकाउंट पढ़ ही लिया है, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं SNPs की फॉर्म में, वी कैन कॉल देम SNPs, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट साइंटिस्ट हैव ड्रॉन फ्रॉम दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। और मोर ओवर वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नो दैट क्रोमोसोम 1 हैज़ दे, जो सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ था ना, उसमें नियर अबाउट 3000 जीन्स हैं। क्रोमोसोम 1 2968 जीन्स, एंड क्रोमोसोम Y which is having smallest number of genes, क्रोमोसोम Y which is a सेक्स क्रोमोसोम, हॉलैंड्रिक जीन्स भी बोलते हैं इसको, और हैविंग 231 जीन्स। सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है? क्रोमोसोम Y ऑफ ह्यूमन, विच इज़ डिटरमाइनिंग द टेस्टिक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, और जो बताता है वाई क्रोमोसोम, तो उसमें जीन्स कितने हैं? 231। आई थिंक ऑल पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू दी साइंस दैट वी हैव कंसीडर्ड, ठीक है। now I have told you all these points, or repeated sequences, they are making the large number of the what we can say human genome project. Now we should know what are future challenges. Future challenges क्या हैं and what uses we can draw. Future challenges and uses of, इसके क्या uses हैं and uses of human genome project. Human genome, because it is not an easy product, कोई इतना easy project नहीं है, because it needs lots of scientists expertise from different disciplines. तो ये एक तरह का चैलेंज ही है, वो अब हम देखते हैं कि क्या challenges हैं. जैसे कि scientists they have drawn near about 90% of the human genome project. अभी तो 90% ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ही डिस्कवर हुआ है, और साइंटिस्ट दे आर आल्सो डूइंग, दे आर इन्वॉल्वड इन डिस्कवरिंग मोर ऑफ द क्राइटेरिया that could be drawn from this human genome project. So it is an international venture है, which is involving lots of scientists, lots of technicians and lots of laboratories and other facilities are needed to study on all of the aspects of the human genome project, and it is a great challenge. बहुत great challenge है. तो first, what is a challenge? It is an international venture. जैसे कि हमने देखा था बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, एंड लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट दे आर इन्वॉल्व, बहुत सारे साइंटिस्ट, लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट. or we can say lots of scientists, technicians and laboratories and other facilities or equipments are needed to complete this process. This is a great challenge for all of us. एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड जैसे कि बहुत बड़ी डिस्कवरीज हो रही हैं. अर्लियर 2% ऑफ दी 2 or 3 जीन्स दे कुड बी स्टडीड एट वन टाइम टू स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द जीन्स. जीन्स में से हमने कुछ भी फंक्शनल एस्पेक्ट स्टडी करने थे तो 2 या 3 जीन्स को ही स्टडी कर पाते थे. अब हम क्या करते हैं, होल, अब साइंटिस्ट व्हाट डू दे डू, होल ऑफ द ह्यूमन जीनोम कंटेंट इज स्टडीड साइमल्टेनियसली. इफ वी वांट टू स्टडी अबाउट डिजीजेस, जैसे कुछ ड्रेडफुल डिजीजेज हैं रिगार्डिंग ट्यूमर है, कैंसर है या अदर डिजीजेज है, तो उसके लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट
को होल्ड स्टडी करने से बहुत इजी हो गया है इन व्हाट मैनर वी हैव टू ट्रीट सच काइंड ऑफ डिजीजेस। तो ये भी एक तरह का ग्रेट चैलेंज है जिसको कि एक्सेप्ट किया साइंटिस्ट ने, एंड सक्सेसफुली दे आर इवॉल्विंग और दे आर गिविंग द रिजल्ट्स ऑफ दिस थिंग्स। तो दिस इज ऑल्सो वी कैन से इज अ फ्यूचर चैलेंज रिलेटेड टू द डिजीज रिलेटेड एस्पेक्ट्स। साइमल्टेनियसली स्टडी करना डिजीज रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जैसे कि ट्यूमर्स को स्टडी करना, या हम कह सकते हैं कैंसर जैसी ड्रेडफुल डिजीज को स्टडी करना। तो होल जीनोम इज स्टडीड एट वन टाइम, होल जीनोम इज स्टडीड and future conclusion can be drawn so that treatment can be effectively done and treatment drawn from this. So this is also a challenge. Now we see what are various uses. एक बार फिर से देखते हैं, वैसे तो मेनली इसका रोल क्या है, डिजीजेस को सॉल्व करने में है। तो बहुत सारी अदर थिंग्स दैट वी शुड दैट आर रिलेटेड विद दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि उसके क्या मेन यूजेस हैं दैट वी सी नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन ह्यूमन जीनोम से वी आर एबल टू स्टडी, वी आर एबल टू नो होल ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ये तो पता ही है, होल ऑफ द ह्यूमन जीनोम, गुड जीनोम कौन सा है, बैड जीनोम क्या है, ये सब चीज़ें भी डिस्कवर की जा सकती हैं और वी कैन टेक ए बेटर पार्ट ऑफ इट, and we should not raise any kind of ethical issue which is involved due to this. good genes क्या हैं, bad genes क्या हैं, तो उससे related जो भी ethical issues हैं वो resolve किए जा सकते हैं by considering all these things. Understanding of phylogenetic characters disorders, genetic disorders, understanding of various genetic disorders, or we can say psychosomatic or polygenic disorders. Polygenic disorders जैसे कि हम कह सकते हैं polygenic diabetes, hypertension, ये भी अच्छी तरह से सक्सेसफुली diabetes and hypertension, इनको भी सक्सेसफुली स्टडी किया जा सका है और उसका इफेक्टिव क्योर। बहुत सारी ड्रेडफुल डिजीजेस तो हैं ही हैं, ये सब चीज़ें वी आर एबल टू नो। दे आर हेल्पफुल इन फार्माकोजेनेसिस प्रोसेसेस, फार्माकोजेनेसिस। अब ये क्या है, जिसमें वी शुड नो व्हाट आर वेरियस वेरिएशंस दैट आर रिलेटेड टू सम डिजीजेस। कुछ डिजीजेस हैं, किस तरह से ये वेरिएशंस दे आर लीडिंग टुवर्ड्स द डिजीजेस, एंड इन व्हाट मैनर वी आर हैविंग एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट और of such kind of diseases, and all of these comes under, किसके अंडर आता है, फार्माकोजेनेसिस में। to study disease to which an organism is susceptible, diseases due to variations in genes, and to lead to effective control। तो बहुत हेल्पफुल है ये फार्माकोजेनेसिस प्रोसेस में। मोरोवर स्टडिंग ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में भी ये बहुत हेल्पफुल है। वेरिएशंस बहुत कम है ह्यूमन बींग्स में, एज वी नो 1 to 2% आर देयर, एंड SNPs आर मोस्टली हेल्पफुल इन स्टडिंग द वेरिएशंस, एंड दे आर co-relating the organism with each other, and in this manner they are effectively studying or helpful in studying the genetics which is related to the population. Population genetics में भी ये helpful prove हुई हैं। Moreover, psychiatric disorders or complex social trait. If an organism is having some complex social trait है, socially थोड़ा सा abnormal है, कुछ उसमें अलग से characters हैं, या कोई भी complex disorders हैं psychiatric, मानसिक रूप से related to psychiatric, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा helpful prove हुई हैं, ठीक है, traits. So these human genome project is very much helpful in studying all these aspects. So next we see, is there any left? They are also helpful in studying about the mutations. Mutations में भी helpful है, और जिसको हम study करके we can create better breeding,
किसी भी एनिमल की ऑर्गेनिजम्स के अच्छे ब्रीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इफ़ दे आर हैविंग एनी काइंड ऑफ यूज़ इन फ्यूचर। तो ये जैसे कि हमें मालूम है नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म भी किए हैं जिनका भी जीनोम को स्टडी किया जा चुका है, जो हमने पहले देखे थे। ऑल दिस थिंग्स साइंटिस्ट आर डूइंग फॉर दी बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस की बेटरमेंट के लिए ही की जा रही हैं, सो दैट दे कैन टेक बेस्ट यूज फ्रॉम देम। तो इन सब के लिए ये म्यूटेशंस कैसे आती हैं, म्यूटेशंस को कैसे, चेंजेस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन इम्प्रूवमेंट ऑफ रेसेस में। तो ये सब चीज़ें भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्टडी से या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी से पॉसिबल है। सो आई थिंक आई हैव ऑल कंप्लीटेड। कंपैरेटिव जीनोमिक्स में भी ये हेल्पफुल हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस में भी ये हेल्पफुल हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ही है आज की डेट में। वर्ल्ड होल दी मेडिसिन एंड वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स दे कुड बी formed on the basis of all they are formed by the biotechnological processes involving the use of DNA or genes. So this project is also important in studying all of these biotechnological process and other genomic development. So this is regarding the better use of human genome project and salient features. I think whole of the topic is completed right now. पूरा टॉपिक पूरा ये लेसन अब कंप्लीट हो चुका है और इसमें मैक्सिमम हमने क्या किया है, एनसीईआरटी ही चेक करना है। जितने भी ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके नंबर्स जो भी हैं, वॉट एवर नंबर्स सच काइंड ऑफ डाटाज जो भी गिवन है उनको एज सच हमने लर्न करना है अच्छे से, सो दैट वी शुड नॉट कन्फ्यूज्ड अबाउट, क्योंकि माइन्यूटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ो ये लेसन भी और उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करो। सो वी कम टू द नेक्स्ट lesson, that is evolution.